starts with the single phase AC fundamental, right? So what is AC signal? What are its basic parameters? How we are differentiate AC and DC? Lot of things we are already discussed. So now again we are going to restart our session. Okay. So see, I'm going to draw AC signal and going to explain you what are the different factors, or we can say that parameters of AC signals are. Okay. See, in basically AC is nothing but called as alternating quantity, or we can say that alternating signal. Okay, because this signal is continually changes in accordance with time. See, as the time changes, on x-axis we are having time parameter, and on y-axis we can say anything, that is voltage, current, power, or any signal. Okay, but keep in mind, as the time changes, time instant changes, t1, t2, t3, all the time its value gets changed. So we can call it as instantaneous signal also. Why instantaneous? Because the signal whose amplitude changes in accordance with time. Okay, so time के साथ अगर signal की value बदल रही है, तो we can call it as instantaneous signal. Okay, now see, so this is what I'm going to show you what are the different parameters of AC signals are. See, this is what the time period of the signal. Time period we can define it by capital T. What is that? Time period we have measured in terms of second, and which is nothing but the reciprocal of frequency. Now what is frequency? Frequency is nothing but completion of one particular cycle. What is cycle? Cycle is nothing but a time, or we can say that a repetition of signal with respect to a complete positive and complete negative part. Okay, so one cycle is nothing but a repetition of complete positive and negative value. Okay, so one cycle, or we can say that frequency is nothing but cycles per second. Okay, how many cycles that particular signal covers in 1 second is nothing but called it as frequency, and we have measured frequency in terms of hertz. Okay, after that, see, time period we have measured in terms of second. See, this is the capital T, and we are talking about this is nothing but a time instant. Time instant. Instant means a particular time instant where we need to calculate a particular value. Okay, देखिए, अगर मैं voltage की बात कर रहा हूँ, तो we can call it as VT1, we can call it as VT2, we can call it as VT3. Okay, likewise. तो वैसे ही नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है? So this is nothing but the instantaneous value of voltages. Okay. अब एक बात बताओ, कोई अगर आपको पूछे कि what is the value of signal of that particular AC voltage, अपने घर पे जो AC voltage आता है वो 230 वोल्ट है, फिर अभी 2 मिनट के लिए सोच के देखिए आप कि जैसे मैंने कहा कि AC signal is an instantaneous signal, but how do I am going to tell you that the AC voltage is having a 220 volt? Because 220 वोल्ट की अगर सिंगल फेज AC की हम लोग अगर बात करते हैं, तो 220 वोल्ट to 230 whatever we can say, within this range our output get changed, right? So एक बात बताओ कि ये तो वैल्यू मुझे कांस्टेंट लग रही है, और आप बोल रहे हो कि अभी मैंने बताया आपको कि ये सिग्नल इंस्टेंटेनियस सिग्नल होता है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए बेटा, लॉजिक ये है कि हमारा जो एसी सिग्नल है वो इंस्टेंटेनियस है, एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट वैल्यू, क्योंकि अगर कंटिन्यूली अगर वैल्यू बदलती रही टाइम के साथ में, तो अगर कोई पूछता है कि एसी वोल्टेज कितना आ रहा है, तो आप पूछेंगे कौन से टाइम पे पूछिए, राइट? क्योंकि the signal whose amplitude is continually changes in accordance with time. So first of all, we need to calculate, or we need to ask that particular person on what time you are going to you require the value of that particular voltage or current, whatever. Okay, तो जो AC क्वांटिटी की वैल्यू आपको चाहिए, तो अगर कोई आपको AC क्वांटिटी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपने पूछना चाहिए दूसरा क्वेश्चन इमीडिएटली, कौन से टाइम पर? क्यों? क्योंकि AC सिग्नल कंटिन्यूली चेंज होता है. फिर आप बोलेंगे सर ये 220 वोल्ट और 230 वोल्ट ये जो भी अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है? I'm going to tell you what is that. That value is nothing but called as RMS value. Now what is that RMS? And why we are converting our instantaneous value into RMS value? Now see, RMS full form is root mean square, and in mathematics, or we can say that, see, AC signal is having two amplitude. I'm going to tell you a detailed story behind it. Now try to focus on board. Okay, see, this is nothing but we can call it as positive amplitude. This is called as positive amplitude. Okay, and this is we can call it as negative amplitude. Over here we can call it as negative amplitude. So how many amplitude AC signal have? How many amplitude AC signal have? 2 amplitude. Okay, 2 amplitude. कौन सी होती है बेटा? प्लस एंड माइनस. ओके, सो 2 एम्पलीट्यूड होती है ना. द फर्स्ट थिंग इज एम्पलीट्यूड मींस व्हाट? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्नल. अगर ये वोल्टेज है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अगर करंट है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, अगर पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर. सो एम्पलीट्यूड का एक सिंपल मीनिंग है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी अराइव्ड. ओके, सो दैट इज नथिंग बट द
amplitude, we can say that maximum value. In technical we can, in English, in general language we can call it as maximum value, but in electrical we can call it as amplitude. Okay, अब देखिए अगर कोई आपको पूछे कि what is this, see, peak to peak, the potential difference between plus Vm and minus Vm, तो we can call it as peak to peak quantity. क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? Peak to peak. It is nothing but the peak to peak voltage or peak to peak quantity. Okay, so what is that? Peak to peak is nothing but plus Vm. अगर यहाँ पे वोल्टेज की बात करेंगे, plus Vm पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ऑफ माइनस Vm. तो देखिए पोटेंशियल में से डिफरेंस रहेगा, तो ये कितना है टोटल, तो वो अगर कोई आपको पूछ रहा है तो पीक टू पीक वोल्टेज इज नथिंग बट सी माइनस माइनस बिकम प्लस, सो व्हाट इज दिस? ट्वाइस Vm. सो V पीक टू पीक पोटेंशियल, we can say that potential difference between peak to peak quantity, and therefore we can call it as peak to peak voltage. And what is that? Twice of Vm. जो Vm होता है उसका दुगना जो भी होगा, that is nothing but the peak to peak voltage. Okay, तो एक साइकिल आप समझ गए. एक साइकिल है रिपीटेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू. नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज नथिंग बट कॉल्ड इट एज फ्रीक्वेंसी, विच इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. Time period, complete, we can say that time required to complete one cycle is nothing but called as time period. Amplitude, the maximum value of signal. Okay, one more important term that AC signal has, what is that? Omega. We can call it as angular frequency. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? Angular frequency. What is the value of that? 2 pi f in radian, or we can say that particular value 2 pi f defines the total, we can say that rotation of that particular signal. Now if we are going back, and when I'm going to explain you how that particular signal, alternating signal, is obtained by electromagnetic induction process. What is that? Faraday's law. क्या था वो? कि whenever flux cuts, see, whenever a magnetic flux cuts, whenever magnetic flux between this particular north to south is going to cut by using a rotational conductor. तो due to a mechanical action, जब हमने इस कंडक्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था तो हमें क्या मिला था बेटा? क्लॉकवाइज हमारा सिग्नल मिला था, एंड दैट क्लॉकवाइज सिग्नल इज नथिंग बट वी कैन कॉल इट एज एसी सिग्नल. सो द फैराडाइज, दिस इज नथिंग बट द फैराडाइज मॉडल, राइट? सो व्हाट इज दैट फैराडाइज लॉ? क्या था वो? व्हेनेवर फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो ये जो कंडक्टर था, ये कंडक्टर जब हमने क्या किया, मैकेनिकल प्रेशर से जब इस कंडक्टर को घुमाया, तब जाके हमें क्या मिला है कि ये फ्लक्स कट हुआ है, और व्हेनेवर फ्लक्स कट्स ईएमएफ इंड्यूस. व्हाट इज द फैराडाइज फर्स्ट लॉ? Faraday's first law is whenever current linking, flux linking with the conductor changes, what we can say, EMF is induced. This is Faraday's first law. What is Faraday's second law? The magnitude of induced EMF, the magnitude nothing but E, magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. What is that? d phi by dt is nothing but equals to d phi by dt. तो जो भी फ्लक्स आप चेंज कर रहे हो by moving that particular conductor due to external mechanical pressure, either by water in hydroelectric, either by steam in thermal power plant, either by wind in the air mills. Okay, so wind mills we can say that. So जो अपना पावर प्लांट होगा, पावर प्लांट के मैकेनिज्म के हिसाब से हमने क्या किया था, इस कंडक्टर को रोटेट किया था. when this particular conductor rotate in complete zero, we can say that, see, अगर ये कंडक्टर यहाँ है बेटा, तो 0 से लेके 90 से लेके 180 to 270 and 270 to 360. So one complete rotation is of what value? 360. So we can say that 2 pi. Clear? Now one more thing. See, the angle between, one more basic concept. What is that? Angle between this particular conductor of rotation and this particular magnetic line of force should be what? Should be basically, we can say that to get a maximum value, we should have this angle is nothing but perpendicular, perfect perpendicular, we can say that 90 degree. But अगर 90 डिग्री नहीं रहा, और अगर 0 से लेके 0 रहा, और 0 पे आपने दिन भर भी अगर कंडक्टर को घुमाया, तो क्या प्रॉब्लम होगा? फ्लक्स कट ही नहीं होगा, और फ्लक्स कट ही नहीं हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो क्या बात है, देखिए कि जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी अपना एक एंगल होगा, उस एंगल के हिसाब से हमारा रोटेशन होगा, राइट? सो एंगल के हिसाब से रोटेशन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म ओमेगा. एंगल के हिसाब से रोटेशन हो रहा है, वी कैन कॉल इट एज एंगुलर वेलोसिटी, the speed of rotation, right? So angular velocity q ये टर्म आई है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. q की देखो बेटा 2 पाई, यानी एक जो रोटेशन हो रहा है कंप्लीट, जो भी एंगल से हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द कंप्लीट रोटेशन इज नथिंग बट 2. Okay, so see, as we just go through all of the parameters, what are the different parameters we are already covered? See, first of all we covered the amplitude, second time period, third frequency, okay, fourth one
time instants. Okay, fifth one, instantaneous values, right? Instantaneous values of voltages and current. Then after we covered one more important parameter, and what is that? That is nothing but the omega. And what we call omega as, omega को क्या बोला हमने? Omega is nothing but called as angular velocity या angular frequency. Okay, what is that? 2 pi f. अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी टर्म है जो हमने ऑलरेडी देखी है, एक बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं अगर किसी को कुछ नहीं समझा होगा तो देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये जो टर्म है ये आई कहां से? एक बात बताओ कि अपने पर्टिकुलर मैग्नेट में जो भी हमें रोटेशन करने के बाद हमने जो फ्लक्स कट किया था, देखिए यहाँ पे ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर घूमता है, राइट? सो वी कैन कॉल इट एज घूम रहा है बार, सो वी कैन कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी हो रही है, ठीक है? दूसरी बात, अब देखिए एक बार अगर कंडक्टर घूमता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार अगर कंडक्टर घूमता है तो टोटल एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, और अगर रेडियन में लिखना है तो हो जाएगा 2 पाई। क्लियर? तो देखिए ये कंडक्टर अगर एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ओके, देन व्हाट वी कैन कॉल इट एज 2 पाई। ओके, नाउ द थिंग इज, देखो ये जो रोटेशन है ये एंगल वाला रोटेशन है, क्योंकि जब वो रोटेट करेगा 0, 10, 20, 90 और 180, 270, 360, राइट? ऑल द टाइम इट्स एंगल चेंजेस. So the first one, angular. Are you clear? The term omega is nothing but called as angular frequency. Angular फ्रीक्वेंसी. क्यों एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला गया उसको? क्योंकि देखिए पहले तो पूरा जब रोटेट होगा तो 0 से 360 डिग्री यानी फ्रॉम पाई टू पाई, राइट? सो टोटल रोटेशन कितने का हो जाएगा? 2 पाई का. ओके, तो देखिए मैं ओमेगा का फॉर्मूला कैसे बना वो आपको बताना चाहता हूं. देखिए सबसे पहले 2 pi is nothing but the total rotation, or we can call it as d theta. So what is d theta? D theta, omega is nothing but d theta by dt. Now what is d theta? D theta is nothing but the total angle of rotation, right? And what is dt? Dt is nothing but the total time required to rotate that particular one complete cycle. So देखिए one complete cycle is nothing but we can say that एक सेकंड या कंप्लीट इन 1 सेकेंड, सो वी कैन कॉल इट एज 1 सेकेंड. एक कंप्लीट साइकिल को अपन बोलते हैं, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज नथिंग बट द टाइम पीरियड. ओके, सो यहाँ पे हमने ले लिया कैपिटल टी. अब अगर कैपिटल टी को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं बाय एफ से, फ्रीक्वेंसी से, तो क्या हो जाएगा बेटा? अभी देखा था हमने कि एफ इज इक्वल टू 1/t. तो देखिए ये टी को मैं अगर रिप्लेस कर देता हूं एफ के साथ तो क्या हो जाएगा? 1/f. So, or we can say that 1/t is nothing but we can say that 2 pi into the f. All of you clear? All of you clear? Why that term we can call it as angular frequency? क्योंकि that total angle of rotation with respect to time we can call it as angular frequency. Okay? तो ये सारे थे हमारे सिंगल फेज एसी सिग्नल के अपने अलग अलग पैरामीटर्स या अलग अलग we can say that features. Okay, what are the different parameters AC signal has? All the parameters we are covered over here. Okay, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं. देखिए बेटा, mathematically how we write the AC signal. देखिए जब मैंने पहले ही कहा है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो टाइम इंस्टेंट है, देखो हर बार टाइम के साथ क्या हो रहा है, सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वी कैन कॉल इट दिस नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सिग्नल. तो देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सिग्नल, और वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज मैथमेटिकली written as by formula V of t is equal to Vm sin omega t. या सेकेंड वे क्या हो सकता है इसका? Vm sin, जैसे टोटल ओमेगा t we can represent it by Vm sin theta. Okay, then the third one is Vm sin, just put the value of omega, क्या है? 2 pi f into t. और अगर हमने इस f को अगर हमने 1/t से रिप्लेस किया तो इट बिकम्स Vm sin 2 pi small t by capital T. This is what? This is nothing but the instantaneous value of voltages or the instantaneous value of current. If we write in a similar way, if we write for the that particular current also. Okay, see what is the equation for current then? What is very simple. क्या हुआ current का equation? I of t is equals to Im sin omega t. वैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके? Im sin theta, Im sin 2 pi f t, और हमने अगर इस f को रिप्लेस कर दिया तो वी कैन राइट इट लाइक Im sin
2 pi small t by capital T. Okay, so this is all about the mathematical representation of AC sine wave signal. Okay, चलो अभी देखिए एक बात, एक किसी को अगर क्वेश्चन है तो लगे तो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि इसको हम लोग साइन वेव क्यों बोलते हैं। देखिए बेटा ऑलरेडी कहा है एक बार और फिर से एक बार बता रहा हूँ, साइन वेव क्योंकि जब अपना कंडक्टर, देखिए अगर इलेक्ट्रिकली अगर मुझे एसी जनरेटर के बारे में आपको थोड़ा बताना है तो दो ही चीजें है। देखिए एक है जो फिक्स होता है वो है अपना मैग्नेट, राइट, और ये मैग्नेट, एंड एक होता है जो रोटेट होता है। तो वी कैन कॉल दिस बार इज नथिंग बट रोटर एंड द मैग्नेट इज नथिंग बट स्टेटर, और वी कैन कॉल स्टेशनरी थिंग्स। लाइक जो मैग्नेट है वो कांस्टेंट है और ये जो कंडक्टर है वो रोटेशनल एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटर, ये हो गया स्टेटर। सो दिस इज व्हाट द जस्ट बेसिक फंडामेंटल रिगार्डिंग द एसी सिग्नल जनरेटर, और वी कैन से दैट व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसी सिग्नल एसी जनरेटर। ओके, सो स्टेटर रोटर भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो जनरेटर की भाषा में हुआ, एसी फंडामेंटल में उसकी ऐसे जरूरत नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए बेटा मैंने ये जो इक्वेशंस आपको लिख के दिए, ये सारे ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट की जो इक्वेशन है, एक चीज हमें समझना है कि व्हाई वी आर हैविंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एसी, क्योंकि हमने देखा कि हर बार क्या हो रहा है कि वोल्टेज के हिसाब से सिग्नल की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं आपको एग्जांपल पूछता हूं कि अगर मेरे घर पे, फिर से रिपीट करेंगे अपना पहला एग्जांपल, कि अगर मेरे घर पे 220 वोल्ट 230 वोल्ट का एसी सप्लाई आता है तो हाउ इट इज पॉसिबल। क्योंकि एक बात बताओ, जो सिग्नल कंटिन्यूली टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो एक 220 वोल्ट है कि 230 वोल्ट है। तो हमने क्या पूछना चाहिए, एट व्हाट टाइम। ओके, तो इंस्टेंटेनियस अगर है वो तो एट व्हाट टाइम। फिर आप बोलेंगे सर ये 220 वोल्ट ये जनरलाइज वैल्यू है क्या एट पर्टिकुलर टाइम है। तो देखिए बेटा दिस 220 वोल्ट एंड 230 वोल्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टर्म एज आरएमएस। मैं आपको इस आरएमएस वैल्यू पढ़ाने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने कहा कि मेरे घर पे 10 वोल्ट का सप्लाई है, तो आप बताओ कि ये 10 वोल्ट का सप्लाई एसी है कि डीसी है, कैसे पहचानना। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ पे सफिक्स में टी दिया है, नहीं, तो अगर टी दिया होता तो, अगर दिया होता तो एसी, नहीं दिया है तो क्या लेंगे अपन, डीसी। अंडरस्टैंड, एक बात ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या, यहाँ पे बेटा कोई एम्पलीट्यूड है, इज देयर एनी एम्पलीट्यूड प्रेजेंट ओवर देयर, नो। अगर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड गिवन है तो वी कैन कॉल इट एज डीसी। बट अगर एक नहीं दो एम्पलीट्यूड गिवन है प्लस माइनस, देन वी कैन कॉल इट एज एसी। आर यू क्लियर। तो देखिए कि अगर यहाँ पे सफिक्स टी दिया है तो एसी, सफिक्स टी नहीं दिया है तो डीसी। लाइकवाइज यहाँ पे अगर एक ही एम्पलीट्यूड है तो एसी डीसी, और अगर दोनों एम्पलीट्यूड मेंशन है तो वी कैन कॉल इट एज एसी सिग्नल। ओके, लेकिन अगर कोई बोलता है कि चलो ठीक है ये डिफरेंस तो आपको समझ गया एसी डीसी का, कैसे पहचानना, तो क्या है, अभी अगर जनरलाइज वैल्यू है, देखिए यहाँ पे अभी भी ये एसी सिग्नल हो सकता है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो सफिक्स टी भी नहीं है, यहाँ पे दो एम्पलीट्यूड भी नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द RMS value of instantaneous signal. Then the thing is, why we need to convert our, what is this RMS value? RMS value is also called as effective value. Okay, so effective value means बेटा देखिए मेरे पास 100 रुपए है, बट उन 100 में से 85 काम के हैं, और हम लोग बोल सकते हैं लाइक 50 रुपीज इज ओनली पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर 100 रुपीज विच आई गोइंग टू यूज। ओके, तो अगर मैं वही 50 रुपए यूज करना चाहता हूं तो दैट इज माई इफेक्टिव अमाउंट, राइट। जस्ट लाइक दैट कि एसी सिग्नल में हमारे पास दो यानी पॉजिटिव की सारी वैल्यू और नेगेटिव की सारी वैल्यूज है, लेकिन कोई भी सिग्नल के सामने अगर मैं प्लस माइनस लिख दूं और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो क्वांटिटीज है, मेरे पास दो सप्लाई है, एक है प्लस माइनस 10 वोल्ट का और दूसरा है प्लस माइनस 20 वोल्ट का, और बताइए उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो क्या आंसर करोगे, देयर इज नो आंसर। why there is no answer, because we don't add two inputs like this. Okay, why, because plus and minus together gives you nothing, क्योंकि एक ही सिग्नल के सामने अगर दो साइन है तो none of the calculator is going to estimate the answer of this. Okay, and therefore we need to convert plus minus amplitude into only plus amplitude, that is we need to convert AC into its equivalent DC. तो equivalent DC, AC का इक्विवेलेंट DC लाने का जो मैथमेटिकल वे है, जो दो तरीके हैं, that two types, or we can say that two ways is nothing but, first way is nothing but RMS and second way is nothing but average. So by taking the RMS flow root mean square of the instantaneous quantity, we are going to get the
we can say that DC equivalent of AC quantity. That is, we are going to convert plus minus quantity into only plus. Okay, क्यों बेटा, क्यों हम लोग प्लस को कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर से एक बार समझ लो. प्लस माइनस का कन्वर्शन प्लस करने का जो बेसिक सिंपल इंटेंशन है वो ये है कि हमें एक डायरेक्शन में ही अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, कोई एनालिसिस करना है, तो वी रिक्वायर्ड अ वन वे करंट, वी रिक्वायर्ड अ यूनिडायरेक्शनल करंट. ओके, सो टू ऑब्टेन इट्स स्टेडी वैल्यू, टू ऑब्टेन इट्स कांस्टेंट वैल्यू, टू ऑब्टेन इट्स डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू, वी कैन कॉल इट एज इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू. ओके, सो एसी डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी क्वांटिटी इज नथिंग बट कॉल्ड एज आरएमएस. अब देखिए, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ये दो पैरामीटर अगर मेरे पास अवेलेबल है, सो विच पैरामीटर आई एम गोइंग टू यूज. ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ गया तो आगे बढ़ते हैं. कि देखिए बेटा, हमारे पास अगर आरएमएस और एवरेज, अगर ये दो मैथमेटिकल तरीके हैं प्लस माइनस को प्लस करने के लिए, तो देखिए आरएमएस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह होगा. देखिए, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वीएम बाय √2. तो 1/√2 अगर हम लोग लिखेंगे तो वो होता है 0.707 ऑफ वीएम. व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट, देखिए, अगर ये वीएम है, ये अगर हमारा टोटल वीएम है, इतनी हमारी अगर एम्पलीट्यूड है, वीएम मींस मैक्सिमम वैल्यू. ओके, मैक्सिमम वैल्यू बोले तो एम्पलीट्यूड. अगर ये हमारा वीएम है तो देखिए ये जो डॉट, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, एक बार फिर से मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं. सी, दिस is the VM. Okay, so this is nothing but the VM, and this is, we can say that the 70% of VM. तो ये जो है हमारी, ये है 0.707 of VM. Understand? So 70% of the maximum value is nothing but 70% of the maximum value is nothing but the RMS value. Okay, देखिए बेटा, 100 क्वांटिटीज में से अगर मैंने मेरी पूरी 50 नेगेटिव क्वांटिटी माइनस कर दी तो इट रिमेन्स. आप अगर जनरलाइज मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50, बट इलेक्ट्रिकली अगर हम लोग रूट मीन्स एंड स्क्वायर के थ्रू अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन पे हम लोग आरएमएस अप्लाई करेंगे, रूट मीन स्क्वायर के मैथमेटिकल फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो वी गेट द 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट द डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू. ओके, दिस इज द, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि अगर कोई बल्ब है, अगर या कोई सर्किट है, तो वो सर्किट में डीसी सर्किट लगा के एक हीट डेवलप की जाएंगी. उतनी ही हीट मिलने के लिए, उतनी ही हीट हमें अगर ऑब्टेन करना है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ AC voltage I have to apply. This is the simple mechanism to obtain the equivalent of that particular AC. Okay, so we go further. देखिए बेटा, जैसे VRMS का फॉर्मूला 0.707 of VM है, वैसे IRMS का भी फॉर्मूला Im by √2 है. तो Im by √2 is nothing but 0.707 of I. ओके, सो वैसे ही एवरेज के लिए भी देयर इज वन मोर वे. आई टोल्ड यू कि एक है आरएमएस और एक है एवरेज. तो इन दोनों में से हम लोग किसको प्रीफर करते हैं? ठीक है, तो देखिए व्हाई वी आर प्रीफर आरएमएस, क्योंकि मैं आपको एक आंसर बताने जा रहा हूं. देखिए बेटा, अगर सिग्नल परफेक्ट साइन वेव है, जितनी पॉजिटिव वैल्यू उतनी ही नेगेटिव वैल्यू है, तो इनका एवरेज क्या आएगा? एग्जैक्ट इन सेंटर. व्हाट डज इट मीन? इसका एवरेज क्या आएगा? 0. तो देखिए, एक लॉजिकली सोच के देखो कि क्या कोई सिग्नल का एवरेज, यानी इतना बड़ा पॉजिटिव और इतना बड़ा नेगेटिव वैल्यू होने के बावजूद अगर वो परफेक्ट साइन वेव है और अगर जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव है, तो देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ एवरेज वैल्यू which may comes 0 or anybody else. So therefore practically we prefers more the RMS one, but even analytically we require average also. Okay, तो average value के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा? देखिए, V average is equals to, what is that? 0.636 of VM, and I average is equals to 0.636 of IM. Okay, so average value and RMS value, based on these two values, we are having two more important parameters for AC. What is that? First one is form factor and second one is peak factor or crease factor. तो peak factor का फॉर्मूला यहां हम लोग डिफाइन करेंगे. व्हाट इज पीक फैक्टर? सी, पीक फैक्टर इज डिफाइंड बाय Kp and form factor is defined by Kf. Okay, so Kf is nothing but the form factor. And what is the formula for that? See, Kf का फॉर्मूला है बेटा RMS value of AC signal upon the average value. Okay, so RMS upon average. So क्या है RMS value का फॉर्मूला? 0.707 of VM upon क्या है एवरेज का फॉर्मूला? 0.636 of VM. So VM get cancelled and we get the answer is 1.11. Okay, so 1.11 is the factor for the Kf. Okay, so Kf form factor. Or there is one more factor Kp, we can call it as peak factor या crease factor. So what is the formula? Peak value upon RMS value.
Okay, so what is the peak value? VM. What is the RMS value? 0.707 of VM. VM get cancelled. 1 upon 707, it comes to be 1.414. So what is this? This is the peak factor and this is the form factor, okay, which is nothing but the two factors based on RMS values and average value. तो अभी मैं आपको एक समराइज करके देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा. देखिए बेटा, कंटेंट्स पढ़ाना बहुत आसान काम है, लेकिन कंटेंट्स को समझाना और कंटेंट्स को समझ लेना, ये चीज करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं. और देखिए, एमपीएससी लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड, वी नीड नॉट रिक्वायर्ड द क्वेश्चन आंसर पैटर्न प्रिपरेशन. We required a fundamental basics level preparation and concept level preparation, so that if any time or if someone is going to ask you question, just flip the question, you can identify its type and you can also identify its we can say that the variety of question they may ask regarding to topic. Okay, so if you have any doubt regarding the we can say the topic covered till time, definitely we are going to look forward in next lecture. Okay, thank you very much.